मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कक्षा जमात 10th गणित चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युगम या दो चलों वाले रेखी समीकरण जोड़े। अज असीं दा कर रहे हैं भाग नंबर 7 अभ्यास प्रश्नावली 3.5। प्रश्न नंबर 1। सब तो पहले बच्चे अपनी एक्सरसाइज 3.5 के पहले सम की रकम देखो। निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में इसे वज्र गुणनखंड गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। जे पंजाबी च असीं स्टेटमेंट नूं पढ़ीए ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਅਨੇਕ ਹੱਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਵਜਰ ਗੁਣਨ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब जिवें असीं लिखते हैं कि समीकरण का एक हल है या समीकरण का एक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल या समीकरण प्रणाली के अनेक हल हैं, या कोई हल नहीं या समीकरण प्रणाली का कोई हल नहीं। हुण बच्चे आपां जिहड़ी अपनी पिछली वीडियो की सी 3.2 एक्सरसाइज के मैं उस दो सम करवाए सी, जिहदे विच मैं A1 बटा A2 B1 बटा B2 ते C1 बटा C2 दी तुलना करके तुहानूं दस्सिया सी ते उहदे फार्मूले लिखाए सी कि कदों समीकरण प्रणाली का एक हल हुंदा है, कदों कोई हल नहीं हुंदा ते कदों अनेक हल हुंदे ने। हुण वो सारे जिहड़े फार्मूले ने वो इस एक्सरसाइज दे इस सम विच लगणे ने, अगले सम दे विच भी लगणगे। तो इस करके मैं इस एक्सरसाइज करवाने तो पहला मैं तुहानूं एक्सरसाइज 3.2 दे वो दोनों सम करवाए सीगे। हुण जिहदा बच्चे मैं इहदियां दो सम दी आपां रकम पढ़ ली है, उहदे च उहने पुछया कि पहले तो समीकरण दे विच इह चैक करो कि किहड़ी समीकरण दा एक हल है, किहदा कोई हल नहीं, जां किहदे अनेक हल ने। ते जेकर इहदा आंसर वो कहंदा आएगा कि एक हल है या एक अद्वितीय हल है, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਸਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀ ਰਾਹੀਂ? ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਵਜਰ ਗੁਣਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿਧੀਆਂ ਸੀ। ਗ੍ਰਾਫ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਨ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਵਿਲੋਪਨ ਵਿਧੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਚੌਥੀ ਵਿਧੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਵਾਲੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਲਈ x - 3y - 3 = 0, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ 3x - 9y - 2 = 0। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਸਮੀਕਰਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਅਨੇਕ ਹੱਲ, ਇੱਕ ਹੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉਹ फार्मूले किहड़े ना निकलते हैं A1 बटा A2 B1 बटा B2 ते C1 बटा C2 दे मुल कड्ढण तो बाद ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1, B1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ -3 ਤੇ C1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ -3। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ A2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 3, ਤੇ B2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ -9 ਤੇ C2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ -2। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ A1 ਬਟਾ A2 1/3, B1 ਬਟਾ B2 -3 ਬਟਾ -9 ਮਾਈਨਸ ਕੱਟੇਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ 1/3, ਤੇ C1 ਬਟਾ C2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3/2, ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੱਟ ਕੇ 3/2। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ 1/3 1/3 ਤੇ 3/2, ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ। ਜੇਕਰ A1 ਬਟਾ A2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ B1 ਬਟਾ B2 ਦੇ, ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ C1 ਬਟਾ C2 ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? ਸਮੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ का कोई हल नहीं ਜਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਸਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ? ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਲੈ ਲਿਆ।
दूजे भाग की रकम लिख ली, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, उतों मैं A1 A2 B1 B2 तो C1 बटा C1 तो C2 दी मुल लिख ली। हुण इन्हां नूं लिखिए A1 बटा A2 कादे बराबर है 2 बटा 3, B1 बटा B2 कादे बराबर है 1 बटा 2 तो C1 बटा C2 कादे बराबर है 5 बटा 8 दे। हुण तीनों देखो 2 बटा 3 1 बटा 2 तो 5 बटा 8, तीनों आपस च बराबर नहीं है। तो जेकर तीनों आपस च बराबर ना होण तो समीकरण प्रणाली का की लिखते हैं आप एक हल। समीकरण प्रणाली का एक इनू ये भी लिख सकते हैं एक विलक्षण हल या एक अद्वितीय हल लिख सकते हैं। हुण उन्होंने कहा सी जे एक हल आएगा तो फिर तुसी अगों सम नूं वज्र गुणन विधि राही या तिरछी गुणा विधि राही ये सम नूं सॉल्व करना। हुण तिरछी गुणा विधि आपां किद्दां लगानी है? तिरछी गुणा विधि लिए एक आप बड़ा वधिया सौखा जिहा एक फार्मूला लिख लैने, इत्थे उहनूं आपां फार्मूले ने दूजे तरीके नाल बोलना होवे तो असीं 2312 का मैथड भी बोलते हैं, 2312 की विधि भी बोलते हैं। हुण 2312 का की मतलब 2312 पहले इत्थे वड्डा वड्डा लिख लो, 2 का मतलब समीकरण च दूजे नंबर ते वाई वालियां रकमां हुंदियां ने हमेशा वो नंबर लिखने ने, सिर्फ वाई एक्स कुछ नहीं लिखना। इत्थे जिवें B1 ते B2 जिहड़े ने दूजे नंबर वाले इत्थे लिख लिया मैं 1 ते 2, 3 मतलब तीजे नंबर वालियां C1 ते C2 वो किन्ना 5 ते 8, फिर 1 का मतलब A1 ते A2 वालियां 2 ते 3 ते 2 का मतलब जिहड़ियां पहले सी उही एंड च आ जाणगियां 1 ते 2। हुण तिरछी गुणा विधि राही की हुंदा है आपां इत्थों स्टार्ट करते हैं 2 दे, इहदे थले लाइन लगा लो क्योंकि ऊपर भी तुसी नंबर लिखे ने थले भी नंबर लिखे, तुसी गलती नाल उल्ट पलट गुणा ना कर जो। ए लाइन लगाती पहले 2312 लिख के फिर 2312 दूजियां तीजी पहली दूजियां रकमां लिखण तो बाद ए मैं तीर दे साइन बनाने, तिरछे साइन बनाए ने, 1 ते 8 तिरछी लाइन आ गई, 5 ते 2 इदां तीर दे। हुण इह सब नूं सॉल्व किद्दां करना है? जदों सॉल्व करना ए तुसी ऊपर हमेशा लिखना ही लिखना x बटा पाना पहले बराबर दा विच साइन पाना y बटा बराबर -1 बटा। हुण एक चीज़ होर इत्थे कई वारी इस जगह ते 1 आंदा ते कई वारी -1 आंदा। हुण कदों 1 आंदा ते कदों -1 आंदा? जे बच्चे तुहानूं रकम इदां दित्ती होवे जिद्दां 2x जमा y ते जिहड़े नाल रकम नाल कुछ नहीं लगा, जे वो बराबर तो परले पासे है ते इत्थे आंदा जे -1 ते जे रकम इदां दित्ती होवे जिवें इत्थे बराबर तो बाद 0 है मतलब जिहड़ी रकम दे नाल कुछ नहीं लगा वो भी एक्स वाई वाले पासे होवे ते उस टाइम इत्थे की आंदा 1। ते कोशिश करिया करो कि तुसी पहले स्टेटमेंट नूं जे तुसी 1 लिखना चाहते हो ते जे इदां रकम दित्ती होवे ते उहनूं इस तरह पहले ठीक करके लिख लो, ते जे तुसी इत्थे -1 लाना चाहते हो ते इदां वाली रकम नूं इदां वाली फॉर्म दे विच कर लो, कोई एक मैथड। ते जे तुहानूं 1 ते -1 का डिफरेंस पता कित्थे कित्ते लगनी है तो वो तुसी बड़े आराम नाल ला सकते हो। हुण इत्थों करना किद्दां? इत्थे मैं लिख लिया x बटा y बटा -1 बटा, थल्ले लाइन लगा ली, इत्थों शुरू करना पहली रकम तो 1 गुणा 8 ए वाले नंबर नूं इहदे नाल गुणा करना 1 गुणा 8 ए विचकार इस तो बाद माइनस का साइन आया जिहड़ा कि असी अपने कोलों लाना, और फिर इधरों इधर आए फिर थल्ले उपर नूं जाना 2 गुणा 5 अगों बराबर का साइन। हुण पहली वाली रकम नूं छड्ड दो, उस तो बाद इत्थों शुरू हो जाओ 5 नूं ते 3 नूं गुणा किया, इत्थे विचकार माइनस का साइन, 8 नूं 2 नाल गुणा करांगे फिर बराबर। हुण दूजी भी छड्ड दो, लास्ट 2 नूं 2 नाल गुणा किया विचकार माइनस का साइन ते 3 नूं 1 नाल गुणा किया। हुण इत्थे फिर एक्स बटा गुणा कर लिए, 1 नूं 8 नाल करांगे 8, 2 नूं 5 नाल किया कितना आ गया 10, 3 नूं 5 नाल किया 15 माइनस का साइन, 8 नूं 2 नाल गुणा किया 16 -1, 2 नूं 2 नाल किया 4 ते 3 नूं 1 नाल किया ते 3। हुण जेकर आपां इहनूं हल करदे हां ते हल करके साडे कोल की आएगा x बटा 8 10 माइनस का ते 8 जमा दा जमा माइनस 8 10 चों 8 घटाए -2 वड्डी रकम का साइन, ते y चो इस तरह 16 चों 15 घटावांगे ते -1 ते इत्थे आ जाएगा -1 बटा 4 चों 3 घटाए ते कितना आ गया 1। ऐ साडे को आंसर आ गया। मैं इन्हां रकमां नूं ही दोबारा तो फिर तो थल्ले लिख लिया। हुण करना की असी मुल इहदे च भी एक्स वाई दा ही कढना, एक एक्स वाली जिहड़ी रकम है उन्होंने एंड वाली रकम जिहदे नाल कुछ नहीं लगा उहदे बराबर करना ते वाई वाली नूं भी उहदे ही बराबर करना। पहले मैं इत्थे विचकार लाइन ला ली, एक्स वाली रकम नूं लिख लिया x बटा -2 बराबर एंड वाली रकम -1 बटा 1, दूजे पासे मैं लाइन लगा ली y बटा -1 बराबर -1 बटा 1। हुण की करांगे आपां
ਇਹ ਇੱਕ x ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ x ਤੇ -2 -1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ -2 ਗੁਣਾ -1 ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਤੇ 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 2। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ y ਬਟਾ -1 ਬਰਾਬਰ -1 ਬਟਾ 1, y 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ y ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ -1 ਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਮਾ ਦਾ 1। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੀ ਸਾਡੀ ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਮ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਹਲੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 ਆਵੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ XY ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹ XY ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆਂਦਾ 1 ਬਟਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ -1। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ ਸਮ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਰਕਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ x ਬਟਾ y ਬਟਾ ਤੇ ਇੱਥੇ -1 ਆਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਸੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰ 0 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲੋਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬਦਲੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਲੈ ਕੇ 1 ਵਾਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ -1 ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, A1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲਈ, B1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲਈ, C1 ਦੀ ਲਿਖ ਲਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ A2 B2 ਤੇ C2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲਈ। A1 ਬਟਾ A2 B1 ਬਟਾ B2 ਤੇ C1 ਬਟਾ C2 ਕੱਢ ਲਿਆ। 1 ਬਟਾ 3 -3 ਬਟਾ -3 ਤੇ C ਬਟਾ C2 7 ਬਟਾ 15 ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟੇਗੇ ਇੱਧਰ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 1 ਬਟਾ 3, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 1 ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 7 ਬਟਾ 15। ਤਿੰਨੋਂ ਰਕਮਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸमीकरण प्रणाली का एक हल है, समीकरण प्रणाली ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸमीकरण प्रणाली ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਸਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹੀ 2312 ਦਾ ਮੈਥਡ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ 2312। 2312 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ B ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ B ਵਾਲੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ A ਵਾਲੀਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੀਆਂ B ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਵਾਲੀਆਂ C ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ C ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 2 ਆ ਗਿਆ ਤੇ B ਵਾਲਿਆਂ -3 ਤੇ -3, C ਇੱਥੇ 3 ਆ ਗਿਆ ਤੇ -7 ਤੇ -15, 1 ਆ ਗਿਆ, 1 ਤੇ 3 2 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਕਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਜਰ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, x ਬਟਾ ਬਰਾਬਰ y ਬਟਾ ਬਰਾਬਰ 1 ਬਟਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1 ਕਦੋਂ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 1 ਲਗਾਤਾ, ਗੁਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ -3 ਗੁਣਾ -15, ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ -3 ਨੂੰ -7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, y ਬਟਾ -7 ਤੇ ਜਮਾ ਦਾ 3, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ -15 ਤੇ 1, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਬਟਾ 1 ਤੇ -3, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ -3, ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ x ਬਟਾ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ 15 ਤੇ 45। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ 3 ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਆਣਾ ਸੀ, 7 ਤੇ 21, 7 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 21 ਤੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 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 ਪਲੱਸ 15 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 15, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ -3 ਤੇ -3 ਨੂੰ -3 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਮਾ ਦਾ 9। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ, 45 ਚੋਂ 21 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ 24, y ਬਟਾ 21 ਚੋਂ 15 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ -6, ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 1 ਚੋਂ 1 ਬਟਾ 9 ਚੋਂ 3 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ 6, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ x ਦਾ y ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ x ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਤੇ y ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਦੇ। x ਬਟਾ 24 ਬਰਾਬਰ 1 ਬਟਾ 6 ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ y ਬਟਾ -6 ਬਰਾਬਰ 1 ਬਟਾ 6। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਰੱਖਣਾ, x ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਰੱਖੋ, ਇਹ 24 ਇੱਧਰ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ 6 ਚੌਕਾ 24, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਆ ਗਈ ਤੇ y ਬਰਾਬਰ ਇਹ -6 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ -6 ਬਟਾ 6, ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ -1। x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਤੇ y ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -1। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਭਾਗ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਾਗ ਬਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ 3 ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਕਰਵਾਤੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮ ਨੰਬਰ दूसरा ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। a ਤੇ b के a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या
ए ते बी दे किहड़े मुੱਲ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਜੋੜੇ ਦੇ अपरिमित रूप ਵਿੱਚ मतलब अनगिनत अनेक हल होणगे। मतलब ਅਸੀਂ ए ਤੇ b ਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਨੇਕ ਹੱਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ मैं रकमा लिख लिया, 1 नंबर 2 नंबर देता। अनेक हल की जो गल करता पाया, कोई हल नहीं, अनेक हल जां एक हल है ਉਹਦੇ ਲਈ a बटा a1 बटा a2 b1 बटा b2 ਤੇ c1 बटा c2 ਲਿਖਣਾ। a1 ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ a ਮਾਈਨਸ b ਹੈ x ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ a ਮਾਈਨਸ b ਜਿਹੜਾ ਉਹ b2 a2 ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ b2 ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ c2 ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। कंपैरिजन करिए a1 बटा इन्हां सारियां रकमां नूं असीं बटे दी फॉर्म च लिख लिया। हुण सानूं उन्हां ने दित्ता की है, वो कहंदा दित्ता हैगा साडे कोल समीकरण प्रणाली दे अनेक हल हैं, अपरिमित रूप में अनेक हल हैं, या समीकरण प्रणाली दे बहुत सारे हल ने या अनेक हल। जदों सानूं उत्थे इहने लिख ही दित्ता अनेक हल, ते हुण इहदा फार्मूला उन्हां ने दित्ता है। उन्हां ने कहा अनेक हल, ते सानूं इत्थे अनेक हल वाला फार्मूला लिखना पैना। मैं अनेक हल का फार्मूला लिख लिया, a1 बटा a2 b1 बटा b2 ते c1 बटा c2। मैं बचे ते a1 बटा a2 का मुੱਲ कढ़िया होया, b1 बटा b2 का कढ़िया ते c1 बटा c2 का मुੱਲ कढ़िया। हुण मैं इन्हां तिन्नां मुੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बराबर का साइन पाना है। ਇਹ मैं क्यों पाया, क्योंकि उन्होंने कहा सीगा ए ते बी का मुੱਲ पता करो ਜਿਹਦੇ ਲਈ समीकरण ਦੇ अनेक हल ने। इस करके जे अनेक की जगह एक हल दिता होंदा ते तिन्नां दे विच बराबर नहीं का साइन आना सी। जे कोई हल नहीं दिता होंदा ते पहले दो च बराबर का, ते तीजे च बराबर नहीं का साइन आना सीगा। हुण इदां आपां साइन पा ले। ਹੁਣ मैं तो दो समीकरण बनाणियां, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ x ਤੇ y ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ a ਤੇ b ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਦੋ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪਣੀਆਂ। ਦੋ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਓ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ 2 ਬਟਾ ab 2 बटा a माइनस b नूं कादे बराबर कर लिया, 7 बटा 3a जमा b माइनस 2। हुण की हो जाना, इच तिरछी गुणा हो जानी, इन्हें इधरले पासे गुणा हो जाना और इन्हें इधरले पासे गुणा। 2 दे नाल 3a जमा b गुणा हो गया, तो 7 दे नाल a माइनस b गुणा हो गया। गुणा कर लो, 6a जमा 2b माइनस 4, तो इधरों इनू गुणा करांगे तो 7a माइनस 7b। इस तो बाद इन्हां नूं गुणा करन तो बाद असी ए बी वालियां रकमां जिहड़ियां ने एक पासे इकट्ठियां कर लैणियां ने। जदों असी एक पासे इहनूं इकट्ठियां कीतियां ते की आ गया, 6 जमा 2b माइनस ए जमा दा सी इधर आके माइनस दा हो गया, माइनस वाला इधर आके जमा दा हो गया। 4 माइनस दा सी, इहनूं मैं परले पासे लै गई, कादा हो गया जमा दा। 7 दे विचों 6 ए घटाते, माइनस दा 1 वड्डी रकम दा साइन, 7b ते 2b दोनों जमा दे ते 9b बराबर 4। यह समीकरण बन गई मेरे को तीजी। इसे तरह ही हुण मैं एक होर समीकरण बनानी है। हुण मैं दूजी रकम नूं तीजी रकम के बराबर किया, फिर जिवें मैं इत्थे लिखिया सी कि इनू मैं ये बराबर करांगी, इन्हां दोनों नूं लिख लिया, यह भी क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, तिरछी गुणा होएगी, 3 ते यह गुणा हो जाणगे। इदा बेशक तुसीं साइन भी पा सकते हो, तो 7 जिहड़ा इन्हां दे नाल गुणा हो जाएगा। गुणा करन तो बाद 9a जमा 3b माइनस 6, ते परले पासे 7a जमा 7b, एक पासे रकमा 9a जमा 3b माइनस 7a माइनस 7b, निशान बदल गए और 6 बराबर तो परले पासे चला गया, वो जमा दा हो गया। 9a चो 7a घटाते 2a, ते 7b चो 3b घटाता ते माइनस दा 4b, ते 6 वड्डी रकम का साइन, समीकरण 4। हुण इस तो बाद तुसी जिहड़ा मर्जी फार्मूला लाओ, प्रतिस्थापन विधि ला लो, विलोपन विधि ला लो। इत्थे मैं लगाती विलोपन विधि। यह समीकरण एक ते ए 2, इनू मैं उपर वाली समीकरण नूं 2 नाल गुणा करता, तो ये कुछ नहीं लगा, मतलब एक थले वाली समीकरण नूं 1 नाल गुणा करता। गुणा करन तो बाद माइनस 2a जमा 18b, 9 नूं 2 नाल कीता 18, 2 नूं 4 नाल कीता 8। यह पंजवीं समीकरण का नंबर बदल गया, 1 नाल कीता तो वही आ गया। हुण इहदे नाल पहले तो ही माइनस का साइन है जमा का, इन्हां दोनों नूं जमा किया, कोई साइन नहीं बदलता जो जमा करते हैं, दोनों कट्टियां गईयां। 18 चो 4 घटाए 14b, तो 8 ते 6 14, b की वैल्यू कड्ढनी, b नूं इधर रखो, यह 14 जिहड़ा सीगा यह नीचे डिवाइड हो गया, ये जाके भाग हो गया, 14 नाल 14 कट्टे गए, कितना आ गया 1। हुण आपां ए दा भी मुੱਲ पता करना। हुण असीं की लिखांगे, समीकरण 4 तो 2a माइनस 4 b सीगा इत्ते, b की जगह ते ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰਤਾ 1 बराबर का दे आ गया 6, 2a माइनस 4 बराबर 6, 2a
ਇਹ 4 परले पासे जाके जमा हो गया 2 ए बराबर कादे आ गया 10 दे ते ए कादे बराबर आ गया 10 2 गुना हो रहा सी इधर भाग कट के कितना आ गया साढ़े को 5 ए बराबर 5 ते बी बराबर कादे आ गया साढ़े को 1 दे। हुण बच्चे इस सम दा ही सम नंबर 2 का अगला भाग देखते हैं जिहदे विच सानू स्टेटमेंट की दी हुई है के किस मान के लिए निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं। इच सानू की दिता कोई हल नहीं, जिद्दां पिछले च दिता सी अनेक हल, इच की दिता कोई हल नहीं। तो हुण फार्मूला किहड़ा लगेगा कोई हल नहीं। यह सानू रकम दी हुई है, हुण असीं अपना सम करिए। बच्चे मैं इत्थे रकम लिख ली कि मेरे को 3x जमा y बराबर 1 पहली 2k माइनस 1 बार की आ गया x जमा k माइनस 1 y ते नाल बराबर 2k जमा 1 दूजी समीकरण। उस तरह ही पहले आप a1 लिख लिया, b1 लिख लिया, c1 ते दूजी समीकरण चो आप a2 b2 ते c2 का मुल लिख लिया। हुण उन्हें सानू दिता है कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं या समीकरण जोड़े का कोई हल नहीं। जिद्दां कि पिछली बारी उन्हें दिता सी अनेक हल, तो मैं इत्थे फार्मूला अनेक हल वाला तिन्नां च बराबर का साइन सी वो लिख लिया। पर जदों उन्होंने मैनू दिता है कि कोई हल नहीं, हुण मैं तो फार्मूला भी कोई हल नहीं वाला नहीं लिखिया। तो कोई हल नहीं वाला फार्मूला किहड़ा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं बराबर c1 बटा c2, मतलब पहले दो बराबर ते तीजा बराबर नहीं। हुण मैं इत्थे a1 बटा a2 का मुल a1 कादे बराबर है 3 दे ते a2 की जगह ते a2 का मुल लगा लिया। बराबर का साइन 1 बटा k माइनस 1 b1 1 दे बराबर ते b2 कादे बराबर है k माइनस 1 दे नहीं इक्वल 1 बटा 2k जमा 1 दे ए लिख लिया मैं। पर ये देखो बच्चे पिछले सम के साढ़े को दो चीज़ों का मुल पता करना सी ए ते बी। जो भी आप दो चरों का मुल पता करना हो सानू दो समीकरण चाहिए ने, पर जेकर सानू इत्थे एक कल्ले के की वैल्यू पता करनी असी एक समीकरण बनावांगे उहदे नाल ही असी के का मुल पता कर लांगे। हुण करांगे कि असीं बराबर वालियां नूं दो नूं सिर्फ ले लैने, ए तीजी नूं छड्ड दिंदे आ ते इहनूं लिख लिया आपां इन्हां दोनां नूं 3 बटा 2k माइनस 1 बराबर 1 बटा k माइनस 1। ए इधरों जाके इस पासे तिरछी गुणा हो जाएगी, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर गुणा हो जाएगा। हुण इनू 3 नूं k माइनस 1 दे बार लगा लिया, इहदे नाल गुणा हो जाना तो यह 1 दे नाल गुणा हो जाएगा, इत्थे है 1 नाल। हुण 3 नूं k नाल गुणा कीता ते 3k माइनस 3 नूं 1 नाल गुणा कीता ते कितना आ गया 3। 2k माइनस 1 नूं 1 नाल गुणा कीता ते उही आ गई। k वालियां रकमां एक पासे लै जाइए। हुण 3k इधर 2k इधर जमा का सीगा परले पासे गया तो माइनस का हो गया बराबर इधर माइनस 1 बच गया, पर यह जोड़ा 3 है जमा का माइनस का सीगा परले पासे जाके जमा का हो गया। 3k दे विचों 2k घटा देंगे तो 1k बच जाएगा, 1 लाने की अगे जरूरत नहीं होंगी। तो इधरले पासे 3 जमा का तो 1 माइनस का, जमा माइनस कि माइनस, तो 3 चो आप 1 घटावांगे कितना आ जाएगा साढ़े को 2, इतने k का मुल कितना आ गया 2। यह साढ़ा बच्चे सम नंबर दूजा जोड़ा वह दूजा भाग है। तो अगों हुण होमवर्क लई इतने देखो बच्चे सम नंबर तीसरा देखो, निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणनखंड विधियों द्वारा हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि तो दूजी केड़ी कही है वज्र गुणनखंड विधि जिहड़ी असी अज कीती है। प्रतिस्थापन विधि असी 3.3 एक्सरसाइज दे विच कीती सी। वज्र गुणनखंड विधि नूं पंजाबी दे विच की कहंदे तिरछी गुणन विधि। ਇਹਦੇ ਨਾਲ दो तरीकों के नाल इक्को सम नूं सॉल्व करना है, दोनों के नाल तुहाडा इत्थे बच्चे तुहानूं आंसर चैक करन दे विच देखो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों फार्मूलिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ तुहाडा जिहड़ा आंसर जो मैच कर गया इहदा मतलब ही है कि तुहाडा आंसर जिहड़ा वो ठीक आ गया, सम चैक हो जाएगा। दूजे पासे बच्चे सम नंबर चौथे का पहला भाग तो दूजा भाग तुसीं अपने आप करना है, क्योंकि ये नाल दे जिहड़े सम ने वो भी आप पिछली वीडियोज़ च कर सके हैं। यह जिहड़ा छात्रावास वाला सम हैगा तुहाडे कोल पहला भाग, जिद्दां दा 3.3 एक्सरसाइज का तुहाडा टैक्सी वाला सम सीगा उही उस तरह का बिल्कुल सम है जिद्दां इहदे च भी मासिक वे नियत मासिक वे है कि मतलब एक निश्चित कराया जिद्दां आ गया कि रहन का साढ़े को निश्चित कराया तो दूजा खाण का खर्चा उत्थे 1 किलोमीटर के खर्चे के हिसाब के नाल सी। इस सम नूं भी बिल्कुल असी उदां ही करना है। तो एक जिहड़ा बचे है भिन्न वाले सम ने आपां दो पिछलियां एक्सरसाइजां दे विच भिन्न वाले सम कीते ने। तुहानूं मैं यह चीज़ दस चुकी हाँ कि अंश नूं x ते हर नूं y मन्नो, फिर जिद्दां उन्होंने जमा करन लई किया होवे उस तरह जे जमा करन लई किया तो जमा कर दो। किहदे च क्या यह भी ध्यान रखना पैंदा, अंश क्या कि हर च क्या, जमा करन लई क्या कि माइनस करन लई क्या, उदा समीकरण बना के यह सम सॉल्व करने। इस तो बाद बच्चे अगे तुहाडे 3 भाग जिहड़े बच गए वो अगली वीडियो दे विच मैं अपने आप करवावांगी। जिहड़े सम सारे वीडियो च सॉल्व ने वो वाले और जिहड़े होमवर्क लई दिते गए ने वो सारे जिहड़े सवाल ने वो तुसीं अपणियां फेयर कॉपियां दे विच करने ने।